Good morning, dear students. Today we are going to discuss the types of combustion. Combustion, the term that you are familiar with now, it is the process in which a combustible substance or material burns in the presence of air to produce heat energy and light energy. Now let's see what are the types of combustion. We have basically four types of combustion: slow combustion, rapid combustion, spontaneous combustion, and explosive combustion. So let's see what is this slow combustion. स्लो कम्बशन में क्या होता है कि स्लो कम्बशन में कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल जो है इट बर्न्स एट अ वेरी स्लो और मॉडरेट रेट. दैट्स व्हाई द टर्म स्लो इज यूज्ड हियर. एट अ वेरी स्लो एंड मॉडरेट रेट द मटेरियल विल बर्न एंड इट अकर्स बिकॉज देर इज इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर. जब हम प्रॉपर एयर की और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो कम्बशन है बहुत स्लो रेट पे होगी. And that is why, because supply of air is not sufficient, so combustion is never complete. For example, in burning of wood और cow dung cake, कभी भी हम लकड़ी को जलाते हैं या काउ डंग केक को जलाते हैं तो उसको जो कार्बन की जो ये फॉर्म्स हैं, ये जो बायोलॉजिकल हमारे फ्यूल्स हैं, तो इनको क्या सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं मिलती है, तो दैट इज़ वाई दे बर्न एट वेरी स्लो रेट with a lot of smoke is produced because combustion is never complete. Now, how this rapid combustion is different from slow combustion. In rapid combustion, the combustible substance burns fast to produce heat energy. And because it is burning fast, that means it is getting a sufficient supply of air. And because it is getting a sufficient supply of air, that means combustion is complete here. For example, in case of gaseous fuels, and for example, that LPG we saw in our last lecture. It was a gaseous fuel, so it was burning very rapidly as soon as we put a spark of lighter over the flame, over the gas burner. Then the third type is spontaneous combustion. Now what does it mean? Spontaneous means when we don't supply any spark. जब हम कोई स्पार्क नहीं दे रहे हैं लेकिन जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो अपने आप रूम टेम्परेचर पे ही फायर कैच करता है. हम उसको बर्न नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी फ्लेम और एनी स्पार्क टू द मटेरियल, बट इट इज कैचिंग फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर. दैट मीन्स the combustible material over here has an ignition temperature which is very very low. For example, the case of phosphorus that we discussed in the last lecture, and even the sodium metal, it is also it also undergoes spontaneous combustion. It catches fire as soon as it comes in contact with air. Now these two materials, phosphorus and sodium, these materials they form oxides in air and produce a lot of heat energy. Okay, so we need to keep them safely. We need to keep them away from the contact of the air. Okay, and then we have explosive combustion. एक्सप्लोसिव कम्बस्शन में क्या होता है? कंबस्टिबल मटेरियल जो है इट बर्न्स इन एयर इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड इन सम क्लोज स्पेस. जब हम किसी कंबस्टिबल मटेरियल को एक क्लोज स्पेस में कन्फाइन कर देते हैं, ओके, तो एकदम बहुत थोड़े से टाइम में ही वो बहुत फास्ट बर्न करता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लोसिव कम्बस्शन और एक्सप्लोजन. combustion occurs in sufficient air and produces large amount of heat. तो यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ. just try to identify what I have drawn. This thing you might have used very commonly. I think you might have understood now what I have drawn here. What is it? Yes, ये दिवाली का हमारा क्रैकर है जिसे हम अनार कहते हैं. ओके, सो जैसे कि अनार के अंदर हमारा जो है फ्यूल भरा हुआ है या कम्बस्टिबल मटेरियल भरा हुआ है, जैसे ही हम उसको इग्नाइट करते हैं तो बिकॉज द कम्बस्टिबल मटेरियल इज कंटेन्ड इन अ वेरी क्लोज स्पेस और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर इज अराउंड इट, तो जैसे ही उसको एक फ्लेम मिलती है इट कैचेस फायर इजीली एंड बर्न्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड विद एन एक्सप्लोजन ऑल्सो. For example, burning of a cracker produces heat, light and sound. Now what is explosion? How can we define explosion then? A sudden reaction that takes place with release of large amount of heat, light and sound is called explosion. So explosive combustion is also called explosion. So this is the proper definition of explosion you can learn from here. So because we have discussed here that explosive combustion is there, spontaneous combustion is there. So what are the precautions we could take to avoid burning of combustible materials? हमें जैसे सपोज हम आप घर में एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं या हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं या देर आर डिफरेंट डीजल पंप पेट्रोल पंप्स आर देयर. हमारे जो एचपी के जो हमारे सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पे हम गैस सप्लाई सीएनजी भरवाने जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ हमें प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है सो दैट द कंबस्टिबल मटेरियल्स आर in bulk over there, they should not catch fire. So we should never take
any burning material, for example burning matchstick or candle, or even the burning cigarette also, within the premises of petrol pumps, LPG godowns, firecracker factories, or ammunition depots. What is ammunition now? Ammunition is the material which is used in making bombs also. For example, sulfur is also used in making these crackers. और फायर क्रैकर फैक्ट्रीज में जहाँ पे पैकिंग हो रही है, मसाला बन रहा है क्रैकर्स का, वहाँ पे भी हमें वी शुड नॉट यूज़ ऑल दीज बर्निंग मटेरियल्स एट ऑल. ठीक है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि वेन एवर दिवाली कम्स सम ऑफ द अदर फैक्ट्री कैचेस फायर, जहाँ पे फायर क्रैकर्स बन रहे थे. तो दैट मीन्स some mistake was there or some precaution was not used, that is why that mishappening happened. Okay, then care should be taken while placing a burning candle in the house during power failure. अब यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज़ द थिंग आई हैव ऑब्जर्व ऑल्सो समटाइम्स द हाउस वाइफ्स व्हाट दे डू कि जब घर में लाइट चली जाती है तो हम कैंडल को जलाते हैं और कहीं पे भी रख देते हैं जहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान पड़ा होता है या फिर यहाँ पे हमारा LPG सिलेंडर पड़ा होता है. सो केयर मस्ट बी टेकन दैट वी शुड नेवर टेक अ बर्निंग कैंडल near the LPG cylinders or any electronic gas, because as soon as the light comes or the power supply comes, the gadgets can catch fire because of that candle, or even the LPG cylinder can burst also. अब इतनी precautions लेने के बाद भी sometimes we hear that some place or the other has got fire. तो कभी कभी इतनी precautions लेने के बाद भी हमें खबर मिलती है कि आग लग गई है किसी जगह पे. तो what are the measures to be taken to fight fire? अगर कहीं पे आग लग जाती है तो कौन से तरीके से हम फिर आग को बुझा सकते हैं. मेजर्स टू बी टेकन टू फाइट फायर और द वेज टू पुट ऑफ फायर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल फायर्स. कभी एक्सीडेंटली कहीं पे फायर लग गई है, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली गई हैं, कोई नेग्लिजेंस हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो फायर लग जाती है. तो अब हमें उनको आग को कैसे बुझाना है. बेसिकली आग बुझाने की जो तरीके हैं वो दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. अगर हम सप्लाई ऑफ एयर बंद कर दें, कंबस्टिबल मटेरियल जो आग लग चुकी है जिसको, उसके ऊपर अगर हम सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन बंद कर दें तो आग बुझ जाएगी, चांसेस हैं. सेकेंड थिंग इज़ दैट लोअर द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल. जो हमारा कंबस्टिबल मटेरियल है उसका इग्निशन टेम्परेचर जितना भी है उससे अगर उस टेम्परेचर को डाउन कर दें हम तो हमारा जो वो मटेरियल है उसकी आग बुझ जाएगी. सपोज किसी का इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फॉस्फोरस, 35 डिग्री से अगर हम लोअर टेम्परेचर ले आते हैं 25 30 कर देते हैं तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस विल नॉट कैच फायर. तो हम अगर टेम्परेचर को लोअर कर दें उस जगह के उस मटेरियल के तो उसका कंबस्टिबल मटेरियल जो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अचीव नहीं होगा, तो फायर विल बी पुट ऑफ. नाउ अब कैसे बुझानी है फायर. इफ़ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, किसी पर्सन के कपड़ों को आग लग गई है, द पर्सन इज कैचिंग फायर, द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट. उस पर्सन को हमें एक मोटे से ब्लैंकेट में फटाफट रैप कर देना है. अब रैप करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि वी आर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर विल स्टॉप. हमने जब ब्लैंकेट से उसको रैप कर दिया तो हमने जो बाहर की एयर की सप्लाई थी रोक दी एंड द फायर विल बी स्टॉप्ड और फायर विल डाई ऑफ. ठीक है. सेकेंड थिंग, दैट फायर प्रोड्यूस बाय कैरोसिन कैन बी पुट ऑफ बाय पुटिंग सैंड टू कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर. अब जैसे कैरोसिन ऑयल को फायर लग गई है या ऑयल को फायर लग जाती है किसी, तो हम फटाफट उस पर मिट्टी या सैंड डालते हैं ताकि जो सप्लाई ऑफ एयर है वो कट ऑफ हो जाए, जिसकी वजह से जो फायर है वो भी बुझ जाएगी. थर्ड, वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू पुट ऑफ फायर ऑफ वुड और बिल्डिंग्स. क्यों? क्योंकि पानी जो है वो टेम्परेचर को डाउन करता है बिलो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट बर्निंग मटेरियल. किसी बर्निंग मटेरियल के ऊपर अगर हम पानी डालेंगे तो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं होगा. दैट मीन्स द फायर विल कट ऑफ और पुट ऑफ. Then fourth is fire caused by oil or gas can also be extinguished or put off by using carbon dioxide fire extinguishers. जो हमारे fire extinguishers हमारे घरों में या schools में लगे होते हैं, buildings में लगे होते हैं, they basically use carbon dioxide. उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, जैसे ही हम उसका ट्रिगर ऑन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जैसे ही उस एक्सटिंग्विशर से बाहर निकलती है तो इट स्प्रेड्स इन वॉल्यूम, और जैसे ही वो उस कम्बस्टिबल मटेरियल के कांटेक्ट में आती है तो उस मटेरियल को चारों तरफ से सराउंड कर लेती है, जिससे उसका एयर का सप्लाई कांटेक्ट जो है बंद हो जाता है, जिस वजह से जो फायर है वो बुझ जाती है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर दैट कैन बी यूज्ड टू पुट ऑफ फायर, बट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड by for putting off the fires caused by electric short circuits. क्यों?
हम कभी भी पानी को इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की फायर को बुझाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो पानी है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा एंड वी मे डाई ऑल्सो। इट कैन प्रूव फेटल ऑल्सो फॉर अस। फेटल मीन्स we can die, the person can die who is using water to put out the fire caused by electric short circuits. Okay, so this is very important point that you must keep in your mind while putting out the fire of any kind, right? So this was all about the measures to be taken to put out the fires. Now what happens when there is incomplete combustion? Remember, incomplete combustion कहाँ पे होती थी? हमारे स्लो कंबस्शन प्रोसेस में, जहाँ पे इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर था, तो वहाँ पे कंबस्शन कंप्लीट नहीं हुई। तो आपने घर में भी कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी हमारे जो गैस के बर्नर्स होते हैं उनके जो होल्स हैं उनमें कुछ कोई चीज़ स्टक हो गई, जैसे कोई चीज़ बॉयल हुई वो बर्नर पे गिरी, आपने टी बॉयल कर दी, जो टी के जो लीव्स थे वो उस बर्नर में जमा हो गए, डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से जो होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं गैस बर्नर के, दे गेट क्लॉग्ड, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब जो है उसको जो बर्नर को प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं मिल रही। जैसे ही हम बर्नर को टर्न ऑन करेंगे तो प्रॉपरली बर्नर के सारे होल्स में से एयर सप्लाई ना जाने की वजह से प्रॉपर फायर नहीं होगी, तो दैट मीन्स वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। इनकम्प्लीट कंबस्शन से क्या होगा कि अनबर्न कार्बन वो एयर में आएगा इन द फॉर्म ऑफ सूट और ब्लैक स्मोक, और हमारे बर्तन भी काले हो जाते हैं। जो व्हीकल्स की सर्विस रेगुलरली नहीं करवाते तो उनमें भी क्या होता है, कभी आपको देखते हो ब्लैक सा धुआं निकल रहा होता है स्कूटर्स में या ऑटोज़ में, क्योंकि उनकी सर्विस नहीं होती है। तो उनके अंदर जो फिल्टर्स लगे होते हैं, फ्यूल के फिल्टर्स होते हैं अंदर लगे हुए, जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी एयर पोल्यूशन का जो चीज़ है वो डिपॉजिट होती रहती है। अगर वो फिल्टर्स को वॉश नहीं किया, क्लीन नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली एयर सप्लाई जो है रुक जाएगी। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की वजह से क्या होगा, सूट प्रोड्यूस होगा, अनबर्न कार्बन वेपर जो है हवा में जाएंगे, तो इसकी वजह से हमारा फ्यूल भी वेस्ट हो रहा है, प्रॉपर हीटिंग नहीं हो रही, फ्यूल की प्रॉपर बर्निंग नहीं हो रही, एंड ऑल्सो इट पॉल्यूट्स द एटमोसफियर बिकॉज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स विल गो इन द एयर. Okay, and second thing that is worse than this is carbon monoxide is formed. Now carbon monoxide is very poisonous gas, and when we inhale this gas it causes respiratory problems and it also may prove fatal. अगर हमने लगातार हम कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेते हैं तो हमारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, हमारे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती हैं, और अगर ज़्यादा एक्सेस में मोनोऑक्साइड में हमने ब्रीथ किया तो हमारे को ये it can cause death also. It can prove fatal, means it can cause death also. So this was for today's lecture. Have a nice day everyone.